لڑکیوں کو معیاری اور یکساں تعلیمی مواقع کی فراہمی کے لیے اقدامات لازمی ہیں۔ پاکستان میں 2,20,00,000 سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ صوبے اور وفاق سکولز میں داخلے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تعلیمی کانفرنس کے مندوبین سے گفتگو۔ مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم بڑا چیلنج، مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے اجتماعی کاوشیں ناگزیر ہیں۔ لڑکیوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی مضبوط اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ خواتین سیاست، معیشت اور آئی ٹی سمیت تمام شعبوں میں صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ خواتین کے روشن مستقبل کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے اسلام آباد میں 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس سے کلیدی خطاب۔ تعلیم پائیدار ترقی کا اہم ستون، لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینا ہوگا۔ خواتین کو تعلیم کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ کانفرنس کا مقصد لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے مثالی پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ امت مسلمہ خواتین کی تعلیم کے لیے بہترین مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی کا اسلام آباد میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب۔ خواتین کو معیاری تعلیم کے حصول میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون ناگزیر۔ سیکرٹری جنرل OIC اور رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل کے بین الاقوامی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط۔ معاہدہ لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ لڑکیوں کی بہتر تعلیم ہی بہتر معاشرے کی ضامن۔ مفت ٹرانسپورٹ، اساتذہ کی تربیت، سکولز کی تعداد میں اضافے اور خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کے منصوبے جاری۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی۔ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے معاشرے میں آگاہی ضروری ہے۔ نیشنل پالیسی اور خواتین کی تعلیم کے لیے بجٹ میں حصہ مختص ہونا چاہیے۔ پاکستان کی پہلی خاتون سرجن جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نگار چوہر کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب۔ مسلمان معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کو درپیش چیلنجز کا خاتمہ ضروری ہے۔ علماء کرام خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے ذہن سازی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے کانفرنس کے بہترین انعقاد کا حق ادا کر دیا۔ اسلام آباد اعلامیہ تاریخی ڈکلریشن ہوگا۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علی عیسیٰ کی نیوز کانفرنس۔ افغانستان کے قائم مقام نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس تارنگزئی کے بیان پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ بے بنیاد، من گھڑت اور جھوٹے الزامات دو ٹوک الفاظ میں مسترد۔ افغانستان میں 2 درجن سے زیادہ دہشت گرد گروپ فعال ہیں۔ 2024 میں ISKP کی بھرتی اور سہولت کاری کا مرکز بھی رہا۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی تازہ ترین رپورٹ۔ افغان عبوری حکام سرزمین کے دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کو روکنے کے لیے عالمی اقدامات کی یقین دہانیوں پر عمل درآمد کریں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 62 ارب روپے کی منظوری۔ مریم نواز کا مئی تک 40,000 لون دینے کا ہدف مقرر۔ پروگرام کے تحت 4200 سے زائد مکان تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن۔ چاہتی ہوں ہر بے گھر کے پاس اپنی چھت ہو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف۔ SIFC کے تعاون سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ۔ مسابقتی کمیشن کی سال 2024 میں مینکاری، توانائی، ادویہ سازی سمیت اہم شعبوں میں 29 ارب 60 کروڑ روپے کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی منظوری۔ آرامکو ایشیا کا گو پیٹرولیم میں 40% حصے کا حصول، ملک کی اقتصادی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار۔ اطالوی کمپنی کی فاطمہ رائس ملز پہ 50%، جبکہ سعودی عرب کی نجی کمپنی کا شیل کے 77% حصے کا حصول۔ سوئس کمپنی کی ٹوٹل پارکوں میں سرمایہ کاری متوقع۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری، مزید 38 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ جبالیہ میں ایک اور سکول پر حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید۔ بوریج اور نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بھی شیلنگ، ہلاکتوں کا خدشہ۔ شہداء کی مجموعی تعداد 46,500 سے متجاوز۔ شہید صحافی سعید النبہان کی جنازے میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ شمالی غزہ کے علاقے بیت حنون میں ایک حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں آتش زدگی پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ ہلاک افراد کی تعداد 16 ہو گئی۔ ہزاروں مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ 2 لاکھ افراد کی نقل مکانی۔
طیارے، ہیلی کاپٹرز اور غیر ملکی فائر فائٹر سمیت قیدی بھی آگ بجھانے میں مصروف۔ نقصان کا ابتدائی تخمینہ $150 ارب۔ امریکہ کے جنوبی علاقوں میں شدید برفانی طوفان سے زندگی کا نظام درہم برہم۔ تعلیمی ادارے بند، 1000 سے زیادہ پروازیں منسوخ، متعدد تاخیر کا شکار۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 پلیئرز ڈرافٹ کل لاہور کے حضوری باغ میں ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن سمیت 44 بین الاقوامی کرکٹرز کی پلاٹینم کیٹیگری میں رجسٹریشن۔ آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر، نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر ٹم سعودی، ویسٹ انڈیز کے جیسن ہولڈر اور جنوبی افریقہ کے راسی ونڈو ڈوسن بھی شامل۔ سعودی پروفیشنل لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری۔ دفاعی چیمپئن لیگ لیڈر الہلال کی العروبہ کو 5 گول سے شکست۔ العروبہ کی ٹیم کوئی گول نہ کر سکی۔ مارکس لینارڈو نے 3 منٹ کے وقفے سے 2 گول کیے۔ پوائنٹس ٹیبل پر 37 پوائنٹس کے ساتھ گول ڈیفرنس کی بنیاد پر الہلال کو پہلی اور الاتحاد کو دوسری پوزیشن حاصل۔ اور آسٹریلیا میں انٹرنیشنل ٹینس ٹورنامنٹ مینز سنگلز کا ٹائٹل کینیڈا کے فیلکس الیاسم نے اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں الیاسم نے امریکہ کے سیباسٹین کورڈا کو 3 سیٹس میں شکست دی۔ الیاسم کے کیریئر کا یہ چھٹا ATP ٹور اعزاز ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا سمیع اقبال۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ پاکستان ٹیلی ویژن خبرنامے کا آغاز اس عزم کے ساتھ کہ آنے والے برسوں میں مسلم دنیا کی ہر بچی تعلیم یافتہ ہوگی اور دنیا کے مختلف شعبوں میں اپنا نام کمائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم دنیا کی بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ٹھوس پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے۔ مسلم ممالک کی بچیوں کی تعلیم کے عنوان سے اسلام آباد میں ہونے والی 2 روزہ کانفرنس میں 47 اسلامی ملکوں کے وزرائے تعلیم اور وفود سمیت اسکالرز، ماہرین تعلیم کی شرکت اس کا واضح ثبوت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا صنفی امتیاز کو یکسر مسترد کرتے ہوئے بچیوں کو حصول علم کے تمام مواقع فراہم کرنے کے عزم کا اظہار۔ آغاز کرتے ہیں بلیٹن کا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ خواتین کو تعلیم کی فراہمی کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا ہوگا۔ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے اسلام آباد میں 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں شریک مہمان وزرائے تعلیم کے ساتھ خصوصی گفتگو میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ لڑکیوں کو معیاری اور یکساں تعلیمی مواقع کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مندوبین نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ معزز مہمانوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ کانفرنس کا انعقاد خواتین کو تعلیم کے حصول میں درپیش مسائل کو حل کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ Today's conference would go a long way in putting our act together and jointly making an effort to promote education amongst girls in Islamic countries. وزیر اعظم نے کہا کہ تمام صوبے اور وفاق بچوں کو اسکولوں میں داخلے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ بچوں بالخصوص لڑکیوں کو اسکول میں داخل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ I have very good memories with Pakistan. I studied in Pakistan 30 years ago. I was in Lahore. That time Punjab was Shehbaz Sharif. Today he is the Excellency, the Prime Minister of Pakistan. At that time I really remember those days. Actually we were getting everything freely, food and accommodation and transportation
Even the public bus, we show the student card, they are not getting money from us. I am very much privileged to be here today again after 33 years when I was a student here in Islamabad. Exchanging the experience from the rest of the countries is very important and very crucial, and the Pakistani leadership for the education in Muslim Ummah is highly appreciated. तुर्की, सोमालिया, किर्गिज़िस्तान, मलेशिया और मालदीव समेत दूसरे ममालिक के वज़राए तालीम ने कहा कि ख़वातीन को मयारी तालीम देने और यकसा मौक़े फराहम करने के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद है। I'm also grateful to Pakistan, to your country and to the Ministry of Education for bringing up a very important issue to the agenda of the international community today. I am very happy that this initiative initiated by brotherly Pakistan, and I am happy that I am participating in this very important conference. I wish to congratulate Prime Minister for organizing such a very important conference. Prime Minister, when he spoke in the conference today, I think very seldom Prime Ministers can use both language, Arabic and also English. And I was really impressed, Honorable Prime Minister. It's a great country, a nice country, and I am very happy to be associated with this very important conference of girls' education, which demonstrates the commitment of the Pakistani government under your leadership, Your Excellency. I would like to convey congratulations to His Excellency Prime Minister, and on behalf of our President Dr. Mohamed Moise and the people of the Maldives for bringing the whole world together. ख़वातीन के लिए मसावी मौक़ों की फराहमी से ही इक़्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली मुमकिन है। मौज़ज़ मेहमानों ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काविशों को सराहते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत उनके लिए बाइस फ़ख्र है। मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर पाकिस्तान में आलमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ख़वातीन की तालीम के मौजू पर सेशन स्वीडन सफारतकार और इल्का सांदबर्ग की सरबराही में जारी है। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना है कि तालीम इख्तियारी मामला नहीं है, ये मर्द और औरत दोनों के लिए नागुज़ीर है। मज़ीद तफसील के लिए हमने राबता किया है अपने नुमाइंदे डॉक्टर मलिक उमर से। आज के सेशंस के हवाले से हमें आगाह करेंगे। उमर, बताइएगा आज के सेशन में कौन कौन से मंदूबीन इज़हार ख्याल करेंगे और ये कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पर आज का सेशन शुरू हो चुका है? जी, इस्लामी ममालिक में ख़वातीन की तालीम के हवाले से ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो है आज दूसरा दिन है इसका और ये जारी है। आज जो है वो तकरीबन जो सुबह के सेशंस में थे उसमें 3 जो है वो डिस्कशंस थी और एक जो है वो पैनल डिस्कशन थी, जिसमें इन डिस्कशंस में ख़वातीन की, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस है ये अपनी नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस है जो ख़वातीन की तालीम के हवाले से है और मुस्लिम दुनिया से और पूरी दुनिया से तकरीबन 47 के करीब जो है वो ममालिक के आलमी शख्सियात, मंदूबीन, सफारतकार और माहिरीन तालीम जो है वो इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हैं। दूसरे रोज़ होने वाली डिस्कशन के अंदर जो अहम तरीन मौजू यहाँ पर डिस्कस किया गया वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ख़वातीन की तालीम के हवाले से था। इसके अलावा मीडिया के किरदार के हवाले से 2 सेशन जो है यहाँ पे हुए। मुकर्रिरीन का कहना था कि ख़वातीन जो है वो पूरी दुनिया का तकरीबन 50% है, इनकी तालीम बेहद जो है वो ज़रूरी है। इनको तालीम से आरास्ता करके ख़वातीन को तालीम और ख़ास तौर पर जो मुआसर एजुकेशन है उससे आरास्ता करके हम न सिर्फ जो है तरक्की की मंजिलों पर तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं बल्कि ख़वातीन जो है वो पीस बिल्डिंग के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। एक सेशन, आज का जो सेशन था, जो मॉर्निंग में सेशंस थे उनमें एक सेशन ख़वातीन का और का किरदार ख़ास तौर पे अमन के हवाले से था। उस पर डिस्कशन करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि जो दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर ख़वातीन जो है मज़ाकराती अमल में और फ़ैसला साजी में अगर ख़वातीन का किरदार ज़्यादा जो है
उसको फ़रोग़ दिया जाए तो दुनिया में अमन के क़याम के लिए जो है मुस्बत इक़दामात किए जा सकते हैं। आज होने वाले सेशन के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया कि ख़वातीन ख़ास तौर पे मुस्लिम इलाक़ों के अंदर जहाँ जो दही आबादी है, जहाँ तक मायारी तालीम जो है उनका उसकी पहुँच अब तक नहीं है, वहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम ख़वातीन को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर सकते हैं। मेरी इस यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ जो ममालिक से आए हुए मंदूबीन हैं और तालीम के हवाले से जो माहिरीन हैं उनसे डिस्कशन भी हुई। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस जो है इसका इनकाद बहुत अहम था और ये अपनी नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस है। इससे पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम जाएगा कि जो इस्लामी ममालिक हैं वो तालीम के हवाले से ख़वातीन को जो है वो यकसा तालीम के कायल हैं और ये कॉन्फ्रेंस इस बात का इयादा करती है कि पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम माशरों के अंदर ख़वातीन को मर्दों के बराबर जो है वो तालीम दी जाएगी और उसी मयार की जो तालीम है दी जाएगी। आज होने वाले जो मॉर्निंग के सुबह के जो सेशंस थे वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुके हैं, जबकि अब से कुछ देर के बाद जो है इसका क्लोजिंग सेशन होगा जिसके अंदर मलाला यूसुफजई जो है वो कलीदी खिताब करेंगी। इसके अलावा वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी जो है वो आखिरी क्लोजिंग सेशन से खिताब करेंगे। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम वर्ल्ड लीग के, वो भी इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। इसके तकरीब के इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आज ही के दिन एलामिया जारी किया जाएगा। ख़वातीन की तालीम बिलखसूस मुस्लिम कम्यूनिटी में ख़वातीन की तालीम के हवाले से एलामिया जारी किया जाएगा। मुकर्रीन का ये भी कहना है और यहाँ पे जो मंदूबीन आए हैं उनका ये भी कहना है कि इसके जो असरात हैं इस कॉन्फ्रेंस के वो दूर रस होंगे। न सिर्फ मुस्लिम दुनिया के अंदर हसासियत पैदा होगी कि ख़वातीन की तालीम और मयारी तालीम को फ़रोग़ दिया जाए, दही इलाक़ों के अंदर भी ख़वातीन की तालीम को फ़रोग़ दिया जाए, जबकि पूरी दुनिया के अंदर एक जो तासुर पाया जाता है कि मुस्लिम ममालिक में ख़वातीन की तालीम पे कम तवज्जो दी जाती है या उसको अहम नहीं समझा जाता। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरी दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि इस्लाम के अंदर ख़वातीन की यकसा तालीम जो है वो बेहद ज़रूरी है और मुस्लिम वर्ल्ड इसके अंदर कोई तखसीस रवा नहीं रखती कि मर्दों की तालीम पे तवज्जो दी जाए और ख़वातीन की तालीम पे तवज्जो नहीं दी जाए। 21वीं सदी के अंदर तमाम जो मुआशरे के फ़ाल रुकन हैं उनका किरदार अदा करना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा मुस्लिम दुनिया ये समझती है कि ख़वातीन की तालीम जो है वो बेहद नागुज़ीर है और ये कॉन्फ्रेंस और इसका इनेकाद इस बात का जो है इयादा करता है तालीम नागुज़ीर है। बहुत शुक्रिया मलिक उमर, आप इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ का अहवाल हमसे शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मजबूत और तरक्की याफ्ता मुआशरे के लिए लड़कियों की तालीम इंतहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम के हवाले से 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत ख़वातीन की मयारी तालीम की फ़राहमी के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। मज़ीद तफ़सील बता रही हैं मरियम मलिक। मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम के मौजू पर इस्लामाबाद में होने वाली 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में 47 मुल्कों से वुज़राए समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के हवाले से दरपेश चैलेंजेस का अहाता करना और मुस्तकबिल के लिए जामिया इक़दामात करना है। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना उनका बुनियादी हक है। ख़वातीन सियासत, मईशत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत जिंदगी के तमाम शोबों में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा stood as an inspiring example of a successful businesswoman. Muhtarama Fatima Jinnah, the mother of the nation, who stood shoulder to shoulder with her brother Muhtarama Benazir Bhutto, shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Late Arfa Karim made history. Maryam Nawaz Sharif, the first female chief minister in Pakistan, continued to inspire women's participation in political and socio-economic future. वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को तकनीकी तालीम, मसनूई ज़हानत जैसी जदीद तालीम देने के लिए तमाम तर वसाइल फराहम कर रही है। A major step
towards addressing educational disparities in Pakistan was the establishment of Dani schools. My government is committed to providing quality education, creating jobs, and offering meaningful opportunities, which include scholarships and vocational trainings in demand-driven skills. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुर्बत के खात्मे और पायदार इक़्तिसादी तरक्की में ख़वातीन के किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा कि लड़कियों को तालीम के हसूल में दरपेश रुकावटें दूर करने समेत उन्हें आला और मयारी तालीम के मसावी मौक़े फराहम करना होंगे। Over the next decade, millions of young girls will enter the job markets. They have the potential not just to lift themselves, their families, and their nations out of poverty, but also to enrich the global economy. I call upon both global and Pakistani organizations, philanthropists, and entrepreneurs to join us in creating scalable and sustainable solutions for girls' education. सेक्रेटरी जनरल OIC और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल ने मयारी तालीम तक रसाई और ख़वातीन के लिए यकसा मौक़े यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत लड़कियों की तालीम पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। बैनुल अक़वामी शराकतदारी का ये मुआहदा लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ में एक बुनियादी सतून का किरदार अदा करेगा। लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान मुल्क की तरक्की में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लड़कियों की तालीम के हवाले से 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के शुरका ने ख़वातीन की तालीम के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इक़दामात को भरपूर अंदाज में सराहा है। तफसील बताएंगी सदफ अफजल। तालीम याफ्ता ख़वातीन मुआशरे की तरक्की की ज़ामिन है। आलमी कॉन्फ्रेंस का मकसद ख़वातीन को तालीम हसूल में दरपेश चैलेंजेस पर गौर और उसके सदेबाब की तजावीज़ का जायजा लेना है। कॉन्फ्रेंस में शरीक ख़वातीन का कहना था कि इस्लाम ख़वातीन के लिए भी तालीम की अहमियत और अफादियत पर जोर देता है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, जो वज़ीर हैं तालीम के, उनको और पूरी पाकिस्तान की कौम को, बिकॉज़ हम लोग कहते नहीं, हम बिलीव भी करते हैं और पूरी दुनिया ने यकीनन देखा भी है और देखेगी भी कि हाउ वी बिलीव इन गर्ल्स एजुकेशन और वुमेन लीडरशिप एज वेल। बेसिकली हम जो यहाँ जमा हुए हैं इसका मकसद यही है कि हम देखें कि दूसरे ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में बच्चियों की तालीम किस तरह से चल रही है और वहाँ अगर वो हमसे किसी फील्ड में आगे हैं वो हमारे साथ वो शेयर करेंगे और हम अगर किसी फील्ड में आगे तो ये मवाजना करेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे और यही हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ इंशाल्लाह आगे बढ़ें और मुल्क का नाम भी रोशन करें। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ फेडरल मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमेशा से तालीम के लिए और ख़ास तौर पे लड़कियों की तालीम के लिए बहुत काम कर रहे हैं और बड़े ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की तरफ उनकी बड़ी तवज्जो है। कॉन्फ्रेंस में होने वाले मुख्तलिफ सेशंस और वर्कशॉप्स में तालीम सबके लिए, इस्लामी नुक्ता नज़र से ख़वातीन की तालीम और मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की शमूलियत जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। औरतों के लिए तालीम एक नेसेसरी पार्ट है इस्लाम का। सो इस कॉन्फ्रेंस को ये कहना और इकट्ठे होके कहना, पूरी मुल्क को इकट्ठे होके मुसलमान ममालिक को ये कहना कि ये एक नेसेसरी बात है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और औरतों की तालीम में किसी तरह की रुकावट हमें नहीं डालनी चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट मोमेंट है। हमारे लिए ऑनर है, पाकिस्तान के लिए ऑनर है कि हम लोग ये चीज़ होस्ट करें और सबको इकट्ठा करें एक प्लेटफॉर्म पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे जो है बच्चों की तालीम का, तो इससे हमारे मुल्क को भी बहुत फ़ायदा होगा। मुस्लिम मुआशरों में तालीम याफ्ता ख़वातीन की अहमियत उजागर करने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें बिलाशुबा वक्त का तकाजा हैं। तालीमी शोबे में एक तारीखी आलमी कॉन्फ्रेंस का इनाकाद इस बात का गमाज़ है कि पाकिस्तान लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लड़कियों की तालीम के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाले वज़ारती इजलासों में बैनुल अक़वामी और इस्लामी क़वानीन की रोशनी में ख़वातीन की तालीम के हवाले से गुफ्तगू हुई। रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सुहेल।
اہم ترین موضوع پر مصر کے مفتی اعظم شیخ ڈاکٹر نذیر محمد نے افتتاحی خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں مفتی مصر نے کہا کہ مسلم دنیا کو لڑکیوں کے لیے تعلیم تک مساوی رسائی کو یقینی بنانے میں اہم اقدامات کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مسلم امہ کو یکجا ہو کر اپنی کاوشیں تیز کرنا ہوں گی۔ سیشن سے خطاب کرنے والے دیگر مقررین میں انٹرنیشنل اسلامک فقہ کے سیکرٹری جنرل، اسلامک ثقافتی کونسل کے صدر، ورلڈ مسلم کمیونٹیز کونسل کے سیکرٹری جنرل، رفح یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے بین الاقوامی اور اسلامی قوانین کی روشنی میں خواتین کی تعلیم اور اس کی اہمیت پر بات کی۔ مقررین نے کہا کہ اسلامی تعلیمات کے حقیقی مفہوم کے مطابق بچیوں کی تعلیم کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خواتین کی تعلیم اور سماجی فوائد کے حوالے سے ہونے والے دوسرے سیشن میں یورپی یونین، یونیسیف، اسلامی تہذیبوں کے حوالے سے ریسرچ سینٹر کی سربراہ، یونیورسٹی فار پیس کے لیے اقوام متحدہ کے مستقل نمائندہ، اسلامک دعویٰ ایسوسی ایشن سنگاپور کے صدر اور مسلم ورلڈ لیگ کے نمائندے نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر ہونے والی دیگر سیشنز کے موضوعات میں مثالی کامیابیوں اور لڑکیوں کی تعلیم کے علاوہ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم، حقیقت اور مستقبل کے ممکنات شامل تھے۔ Government and organizations must prioritize policies that promote gender equality in education, provide scholarships, and address the barriers girls face. We know that women and girls play a vital role in the socio-economic development of societies, and we know that women constitute half of the societies. خصوصی نشستوں میں شریک ہونے والے عالمی شرکاء نے لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق حاصل کی گئی کامیابیوں اور معلومات کے تبادلے، تعلیم کے میدان میں درپیش مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کے لیے قابل عمل اقدامات پر بات کی۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی کانفرنس میں اعلیٰ سطح سیشنز میں شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مسلمان معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بنیادی اقدامات کرنا لازمی ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ رابطہ عالمی اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے کہا ہے کہ مسلم معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم کو درپیش چیلنجز کا خاتمہ ضروری ہے۔ تمام علماء کرام خواتین کی تعلیم کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد نے کانفرنس کے بہترین انعقاد کا حق ادا کر دیا ہے۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے کہا کہ خواتین زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر متوازن معاشرے کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات اس بات کا درس دیتی ہیں اور مسلمان ملک خواتین کی تعلیم کے لیے بہتر سے بہتر مواقع فراہم کرنے کا بھرپور عزم رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کو ایک پیغام جائے کہ تمام امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہے کہ عورت کی تعلیم ضروری ہے اور معاشرے کی ترقی کے لیے ہمیں عورت کو تعلیم دینا ہوگی۔ پوری عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ عورتوں کی تعلیم ضروری ہے اور جو لوگ عورتوں کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے کہا کہ پاکستان نے کانفرنس کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں اور اس کانفرنس سے متعلق اسلام آباد اعلامیہ ایک تاریخی ڈیکلیریشن ہے۔ ایک اسلام آباد ڈکلیریشن کا اعلان کیا جائے گا اور جو در حقیقت ایک تاریخی ڈکلیریشن ہوگا جس سے دنیا بھر کو اسلام کے حوالے سے اور اسلام میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ایک اچھا پیغام جائے گا۔ شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے کہا کہ مسلم معاشرے خواتین کو تعلیم کے حصول میں سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام علماء کرام بھی خواتین کی تعلیم کے لیے پرعزم ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے OIC کے سیکرٹری جنرل کا پاکستان میں خیر مقدم کرتے ہوئے مسلم کمیونٹیز میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور مواقع کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس میں OIC کی جانب سے اعلیٰ سطح کی شرکت کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال، بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر، افغانستان، اسلاموفوبیا، دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک، تشدد اور اس سلسلے میں OIC کے کردار پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ محمد اسحاق ڈار نے OIC کے اصولی موقف اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے منصفانہ جدوجہد کے غیر متزلزل حمایت کو بھی سراہا اور اسلاموفوبیا پر OIC کے خصوصی نمائندے کی تقرری کی بھی تعریف کی۔ ناظرین، SIFC کی معاونت سے پاکستان میں عالمی سرمایہ کاری کے ذریعے معیشت میں اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ مسابقتی کمیشن پاکستان نے گزشتہ برس 29.6 ارب روپے کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی منظوری دی۔ یہ سرمایہ کاری بینکنگ، توانائی، فارماسیوٹیکلز سمیت اہم شعبوں پر مشتمل ہوگی۔ آرامکو ایشیا نے گو پیٹرولیم میں 40% حصص کا حصول اقتصادی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار ہے۔
डच मिस्री कंपनी की जानिब से एडवांस पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस बैंक में सरमाकारी से मालियाती शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ मुतवक्किल है। अतालवी कंपनी की फातिमा राइस मिल्स में 50% हिस्स की सरमाकारी ज़रई शोबे में गैर मुल्की सरमाकारी की नई मिसाल है। स्विट्ज़रलैंड की मारूफ कंपनी का टोटल पार्को के 50% हिस्स खरीद कर तवानाई के शोबे में दिलचस्पी का इज़हार है। सऊदी अरब की निजी कंपनी ने शेल के 77% हिस्स खरीद कर पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। मरियम नवाज ने मई तक 40,000 लोन देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लोन देने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और लोन 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला को बताया गया कि सूबे भर में तकरीबन 5,000 शहरी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोन ले चुके हैं। प्रोग्राम के तहत 4,200 से ज़्यादा मकान तेज़ी से तकमील की जानिब गामजन हैं। रोडा और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के इश्तराक से नादार ख़ानदानों को भी बने बनाए घर मिलेंगे। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मैं चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने रुकने कौमी असम्बली और पोलियो के खात्मे के सफ़ीर आसफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन अमान की सूरत हाल और बिलखुसूस पोलियो में इजाफे के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार किया गया। आसफा भुट्टो जरदारी ने बीबी शहीद के विजन के मुताबिक गवर्नर हाउस पेशावर से विमेन एम्पावरमेंट, यूथ इंगेजमेंट और बैनुल मज़ाहिब और मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात उठाने पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेक्टर I-9 में मुल्ज़िमान की फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस के शहीद जवान ज़ुबैर शाह को खराज अक़ीदत पेश किया है। मोहसिन नकवी ने शहीद ज़ुबैर शाह के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदान के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान को फिलफौर कानून की गिरफ्त में लाया जाए। उन्होंने कहा कि शहीद ज़ुबैर शाह के ख़ानदान को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे और शहीद के ख़ानदान की मुकम्मल देखभाल की जाएगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कायम मकाम नायब वज़ीर ख़ारजा शेर मोहम्मद अब्बास तानकज़ई के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा मोहम्मद आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में बेबुनियाद, मनगढ़ंत और झूठे इल्ज़ामात को 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अफगान नायब वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में TTP, अलकायदा, ISKP, ETIM और IMU समेत 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप फाल हैं। अफगानिस्तान 2024 में ISKP की भर्ती और सहूलतकारी का मरकज़ भी रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान अबूरी हुक्काम दहशतगर्दी के नेटवर्क के खात्मे और अपनी सरजमीन के दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल को रोकने के लिए आलमी इक़दामात की यकीन दहानियों पर अमल दरामद कराएं। गजा पर इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी में मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जबालिया में एक और स्कूल पर हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ज़ैनब अलवज़ीर स्कूल में बेघर फ़लस्तीनी मुकीम थे। बवरेज और नसीरात पनाहगज़ीन कैंप पर भी जारे फ़ौज ने शेलिंग की जिसमें हलाकतों का खदशा है। गजा के इलाके दराज में एक हमले से कम अज़ कम 4 शहरी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। दीरुल बलाह में इसराइली फ़ौज की बमबारी में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में फ़लस्तीनी शोहरा की मजमूई तादाद 46,500 से तजावुज़ कर गई है। वस्ती गजा में इसराइली फ़ौज के हमले में शहीद होने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ी सईद अल निभान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद के जनाजे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसराइली ज़राए के मुताबिक शिमाली गजा के इलाके बैत हनून में एक हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए, जिसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते शिमाली गजा में हलाक होने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 10 हो गई है। उधर मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। कई इलाकों से फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया है। वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलस की तरफ फ़लस्तीनियों की नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में आज शाम से मुतल्लिक वज़ारती इजलास हो रहा है। इजलास में शाम में इंसानी इमदाद पर गौर और दमिश्क पर से
बैन अल-अक़वामी पाबंदियाँ हटाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाम की नई इंतजामिया के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अश-शेबानी तस्दीक कर चुके हैं कि शाम सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात उस्तवार करने का ख़्वाहां है। लेबनानी वज़ीर आज़म ने दमिश्क में शाम के तहरीर-उश-शाम के सरबराह से मुलाकात की। मुलाकात में शाम को दरपेश मौशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस निमटने समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 15 बरस बाद किसी भी लेबनानी वज़ीर आज़म का शाम का ये पहला दौरा है। और यहाँ आपको बताएं कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन नादिर सदक़े पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग से झुलस कर हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई है, जबकि 13 अफराद लापता हैं। हज़ारों मकान और इमारतें राख का ढेर बन चुकी हैं। 2 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और गैर मुल्की फायर फाइटर्स समेत कैदी भी आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। हुकाम के मुताबिक तमाम तर कोशिशों के बावजूद तेज़ हवाओं की वजह से आतिशज़दगी पर काबू पाने में मुश्किल पेश आ रही है और खदशा है कि हलाकतों की तादाद में नुमाया इजाफा हो सकता है। आग की वजह से 2 लाख से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन $150 अरब से ज़्यादा तक पहुँच गया है। मुतासरा इलाकों में रात को सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पैसिफिक पेलिसीड्स का इलाका आग से बुरी तरह तबाह हो गया है। ये वो इलाका है जहाँ हॉलीवुड के अरबपति अफराद के घर हैं। एक तरफ आग है तो दूसरी जानिब अमरीका की जनूबी रियासतें ह्यूस्टन और शिमाली कैरोलिना शदीद बर्फानी तूफान की जद में हैं, जहाँ निज़ाम ज़िंदगी धरम भरम हो गया है। तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, जबकि 1000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख और मुतअद्दिद ताख़ीर का शिकार हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल सिक्योरिटी के नाम पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। KMS के मुताबिक मोदी पीर को वादी कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। भारत के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है और 20 किलोमीटर तक सादा कपड़ों में मलबूस भारतीय पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। पूरी वादी कश्मीर, खासतौर पर सोनामर्ग में भारतीय फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इलेक्ट्रॉनिक आलात से निगरानी और फोर्सेज एहलकारों की गश्त बढ़ा दी गई है, जबकि तलाशी के लिए इजाफी चौकियां भी कायम की गई हैं। ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीनगर लह शारा को 2 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है। इन सख्त पाबंदियों से पहले से मुश्किलात का शिकार मजलूम कश्मीरियों के मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। भारतीय पुलिस ने ज़िला डोडा में 4 गिरफ्तार अफराद के खिलाफ काले कानून UAPA के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है। गिरफ्तार अफराद शौकत अली, मुनीर हुसैन, तनवीर अहमद और नूर आलम पर आज़ादी पसंद तंजीमों की हिमायत का इल्ज़ाम आयद है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए जालिमाना हथकंडे और काले कवानीन इस्तेमाल करने की मज़म्मत की है। बलोचिस्तान के इलाके सुई में अमन जिरगे का इनेकाद किया गया, जिसमें IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर, सुई के कबायली हमायतीन, सोशल वर्कर्स, सिविल इंतजामिया और मकामी अफराद ने शिरकत की। कबायली हमायतीन ने डेरा बुगटी, सुई और दीगर इलाकों में बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान पर FC बलोचिस्तान की काविशों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जामियात के तलबा तालिबात ने किला बाला हिसार पेशावर का दौरा किया। उन्होंने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, शहदा के बुलंदी दरजात के लिए फातिहा खानी की। वफ्द को फ्रंटियर कोर नॉर्थ के ऑपरेशनल उमूर समेत ज़ेर इस्तेमाल किला बाला हिसार की तारीखी और सिखों और अंग्रेज़ों के अदवार में इसकी जंगी अहमियत के हवाले से ब्रीफ किया गया। तलबा और तालिबात ने किला बाला हिसार के दौरे पर पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज और तमाम पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखुसूस ISPR का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम आए यहाँ पर। उन लोगों ने हमें बताया, हमें ये सिखाया कि किस तरह हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है इसके लिए कितने हमारे शहदा ने जाने पेश किए, जानों के नजराने पेश किए। हमने यादगार शहदा पर भी हाजिरी दी और हमें ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर के जवान कैसे मुल्क का खिदमत करते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आर्मी की तरफ से। जो मिसपरसेप्शंस है और जो डिसइंफॉर्मेशन की वजह से जो स्पेशली यूथ में हमने फोर्ट वाले हिसार म्यूजियम को विजिट किया, जहाँ पर हमने जो हिस्टोरिकल सेक्रीफाइसेस थी जो आर्मी की तरफ से और जो इस फोर्ट की जो हिस्ट्री थी उस बारे में आगाही हासिल की।
गिलगित बल्तिस्तान के संगलाख पहाड़ों के दरमियान सफ़र आसान नहीं है, ताहम FW ने जगलोट स्कर्दू जैसे शाहकार को तामीर करके नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ये प्रोजेक्ट 2015 में गैर मुल्की कंपनी को 52 अरब रुपए में दिया गया, ताहम कंपनी मंसूबे को दरपेश चैलेंजेस के बायस काम करने से कासिर रही। 2017 में जंगलोट स्कर्दू रोड मंसूबे को FWO को सौंप दिया गया। FWO ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए अपनी गैर मामूली महारत से इस मंसूबे को कामयाबी से मुकम्मल किया। गैर मुल्की कंपनी ने इस मंसूबे के लिए 52 अरब रुपए तलब किए, जबकि FWO ने 164 किलोमीटर तवील शाहराह सिर्फ 31 अरब रुपए की लागत में तामीर की। जगलोट स्कर्दू रोड ऐसी दुश्वार गुजार पहाड़ों से गुजरती है जो कुदरती फॉल्ट लाइन्स पर वाक़ है। मौसमी हालात और पानी की कुदरती गुजरगाहों की वजह से इस सड़क पर अक्सर मिट्टी के तूदे गिरते हैं। ऐसी 11 हसास जगहों की निशानदही करके NHA ने शेल्टर्स और टनल्स की तामीर की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद FWO ने हर साल 600 मिलियन रुपए की लागत से इस सड़क की बिला मुआवजा मुरम्मत की। इस शाहराह की तामीर और मुरम्मत के दौरान 20 से ज़्यादा कौम के सपूतों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। पहले गिलगित से स्कर्दू का सफ़र 12 से 13 घंटे में तय होता था। इस शाहराह की तामीर के बाद यह वक्त सिर्फ 3 घंटे तक महदूद हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने के लिए 50 अरब की लागत से गिलगित गिजर एक्सप्रेसवे पर काम तेजी से जारी है। गिजर से रिपोर्ट करेंगे हिदायत शाह। गिलगित बल्तिस्तान में बड़े तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। इनमें एक अहम मंसूबा गिजर शंदूर एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम जारी है। 50 अरब रुपए की खतीर रकम से तामीर होने वाले इस मंसूबे के पहले मरहले में गिलगित से गाकुच तक 70% काम मुकम्मल हो चुका है। इस साल के आखिर तक गिलगित से जिले हेडक्वार्टर गाकुच तक रोड मुकम्मल होने का इम्कान है। गिलगित एक्सप्रेसवे बनने के बाद न सिर्फ इस रोड से गिलगित से चित्राल तक के लोगों की जो जिंदगी की जो सफरी मुश्किलात है वो आसान होंगी, बल्कि ये पैकेज का एक अल्टरनेट रूट बन जाएगा। यहाँ से लोग पिशावर चित्राल की तरफ से होते हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद जा सकते हैं। दूसरे सूबों की तरफ हमारे कनेक्ट होगी वहाँ से, और यहाँ से टूरिज्म का जो फ्लो है वो बढ़ता जाएगा। गिलगित शंदूर एक्सप्रेसवे CPEC का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान को चित्राल के रास्ते मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने के लिए महफूज जमीनी रास्ता मैसर होगा। गिलगित शंदूर रोड पर तामीराती काम तेजी से जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद सयाहों की एक बड़ी तादाद जिला गिजर का रुख करेगी। हिदायत शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला गिजर। खबर देंगे आपको जिला ननकाना साहिब से, जहां 53 करोड़ रुपए की लागत से 21 सरकारी अस्पतालों और बुनियादी हेल्थ मराकज की बहाली और तामीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। जावेद अहमद मुआविया की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत की हदायत पर ननकाना साहब और इसकी 3 तहसीलों में 17 बुनियादी मराकज़े सेहत और 4 देही मराकज़े सेहत की बहाली और तामीर और मुरम्मत के मंसूबे पर 53 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आई है, और ये मंसूबा 3 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। जिस तरह की सहूलियात इसमें अवेलेबल हैं, लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से हर किस्म की सहूलियात से इस्तेफादा हासिल करेंगे। तमाम वैक्सीनेशन हो जाती है, और न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर बच्चों के लिए और हामला खवातीन के लिए उसकी भी सहूलत दी गई है। नई बिल्डिंग जो दी गई हैं और उनमें जो फैसिलिटीज दी गई हैं, यकीनन ये गरीब शख्स के लिए अजीम नेमत से कम नहीं है। महकमा सेहत की तरफ से जिले के दूर दराज के इलाकों में हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे खुले रहने वाले इन तमाम मराकज़े सेहत में माहिर डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। मंसूबे के दूसरे मरहले में मजीद 14 मराकज़े सेहत की बहाली और तामीर और मुरम्मत का काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। छोटे शहरों, कस्बों और देहात में वाक़ इन सरकारी अस्पतालों की बहाली के बाद यहाँ हजारों अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। DIG जेल खाना जात पंजाब रावलपिंडी रीजन अब्दुल रऊफ राना ने डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया और मुख्तलिफ बैरकों, चक्कियों, लंगरखाने और डिस्पेंसरी का मुआयना किया और जेल अस्पताल में दाखिल मरीजों की इयादत की। उन्होंने जेल में सफाई के बेहतरीन इंतजामात और कैदियों को बेहतरीन खाने की फराहमी पर सुपरिटेंडेंट जेल हक नवाज चौधरी की काविशों को सराहा। उन्होंने कैदियों के मसाइल भी सुने और उनके हल के लिए फौरी इक़दामात की यकीन दहानी करवाई। DIG अब्दुल रऊफ राना ने शजरकारी मुहिम 2025 के तहत डिस्ट्रिक्ट जेल में पौधा भी लगाया। उनका कहना था कि शजरकारी मुहिम के तहत रावलपिंडी रीजन की तमाम जेलों, मंडी बहाउद्दीन, जेलम, चकवाल, अटक और अडयाला जेल, रावलपिंडी में हजारों पौधे लगाए जाएंगे। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स मुल्तान, चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट और पंजाब हुकूमत के ताउन से
अटक में 300 से ज्यादा अफराद में मुफ्त व्हील चेयर्स तकसीम की गईं। तकरीब के मेहमान खुसूसी चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट एशिया के सदर केलिया जॉनसन ने कहा कि इंसानियत की मदद करें। इन व्हील चेयर्स की मदद से खुसूसी अफराद को रोज़मर्रा के काम करने में आसानी होगी। कोशिश होगी आइंदा भी ऐसे फलाही कामों को जारी रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा और दूसरे मुकर्ररीन ने कहा कि दोस्त ममालिक की तरफ से व्हील चेयर्स के अतिया का खैर मकदम करते हैं। जिला अटक की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर मेहनत जारी रखेंगे। फैसलाबाद प्रेस क्लब के ज़रिए एहतमाम सहाफ़ियों और उनके अहल खाना के लिए तफरीही मेले का एहतमाम किया गया। तफसील आपको बताएंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। फैसलाबाद प्रेस क्लब की तरफ से इकबाल स्टेडियम की तफरीह गाह में सजाए गए तफरीही मेले में सहाफ़ियों और उनके अहल खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेले में खास तौर पर बच्चों ने झूले, रेलगाड़ी, वाटर बोट, पायरेट शिप और दूसरी खेलों से खूब लुत्फ उठाया। एक तो मिलजुल कर इकट्ठे बैठने का मौका मिला है और आप देखें आपको हर बच्चे के चेहरे पे जो खुशी नजर आएगी। बच्चे खुश होते हैं तो वालिदैन जो अपने आप ही मुस्कुरा बैठते हैं और खुश हो जाते हैं। हमारे लिए प्रेस क्लब वालों ने बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे झूले भी लिए, हमें बहुत मजा आया, हमने एंजॉय किया, फैमिली के साथ टाइम गुजारा। प्रेस क्लब वालों ने हमारे लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया और हमने बहुत एंजॉय किया और हम बहुत खुश हैं। तफरीही मेले में सहाफ़ियों ने अपने साथियों के साथ फुर्सत के लम्हात से लुत्फ अंदोज होते हुए खूब गपशप भी की। सहाफत के मसरूफ मामूलात में सहाफ़ियों और उनकी फैमिलीज के लिए तफरीह का इंतजाम प्रेस क्लब का काबिल तहसीन और काबिल तकलीद इक़दाम है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। जिला सखर के सरकारी स्कूलों में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने जदीद और तख्लीकी साइंसी मॉडल्स बनाकर शुरका को हैरत ज़दा कर दिया। सखर से मलिक इमरान शाहिद की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मुनक़िदा इस नुमाइश में जिला भर के 27 स्कूलों के तलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करते हुए साइंसी मॉडल पेश किए, जिनके जरिए मुख्तलिफ साइंसी मसाइल के हल और पेचीदा साइंसी तस्वुरात को वाज़ेह अंदाज में पेश किया गया। इन मॉडल्स ने न सिर्फ तलबा को सीखने की सलाहियतों को उजागर किया बल्कि इनके एतमाद में भी नुमाया इजाफा किया। इस नुमाइश का मकसद तलबा की तख्लीकी और तहकीकी सलाहियतों को फरोग देना था, जो मुस्तकबिल में उन्हें साइंसी मैदान में कामयाबी के लिए रहनुमाई फराहम कर सकता है। हमने प्रोजेक्ट बनाया है क्लाइमेट चेंज इन सेंस। मेरे प्रोजेक्ट का नाम हाइड्रोक्रेन है और ये सिरिंजों से बनी है और पाइप लिक्विड का इस्तेमाल किया है। और सर इसका एडवेंचर ये है कि ये बाइक से बाइक सामान उठा सकती है। ऐसे मुकाबले तलबा में साइंसी शऊर को उजागर करने और इनकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा करते हैं। तलबा की तालीमी सलाहियतों को उजागर करने के लिए इस किस्म के इक़दाम इंतहाई सूदमंद होते हैं। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। बल्तिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी में लोग घरों को गर्म रखने के लिए मकामी सतह पर तैयार करदा अंगीठी बखारी का इस्तेमाल किया जाता है। ये बखारी मकामी सतह पर तैयार की जाती है। स्कर्दू से कासिम नसीम की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क के इंतहाई शुमाल में कराकोरम और हिमालय की पहाड़ी सिलसिलों में घिरा होने के बाइस बल्तिस्तान का शुमार मुल्क के सर्द तरीन इलाकों में होता है। इस शिद्दत की सर्दी का मुकाबला करते हुए अपने घरों को गर्म रखने के लिए लोग मकामी सतह पर तैयार करदा अंगीठी बुखारी का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। इन बुखारियों में लोग लकड़ी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। बल्तिस्तान में नवंबर से मार्च तक पड़ने वाली शदीद तरीन बर्फबारी और इसके नतीजे में पड़ने वाली खून जमा देने वाली सर्दी का मुकाबला बिजली या LPG गैस के हीटरों से मुमकिन नहीं। सर्दी का तोड़ जो है गैस के हीटर हैं, तेल के हीटर हैं, लेकिन जो बुखारी का मजा है वो अपना है। ये मकामी सतह पर तैयार की जाती हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बुखारी तैयार करने की दुकानें खुली हुई हैं, जहां मौसम सरमा में ये कारोबार अपने अरूज को पहुंचता है। ये बुखारी बेडरूम और मेहमान खानों के अलावा बावर्ची खाने में भी इस्तेमाल होती है। मकामी कारीगरों को बेहतर सहूलतें फराहम की जाए तो बुखारी की ये सनत बेहतर कारोबार का दर्जा हासिल कर सकता है। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, करदो। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। रात के औकात में पंजाब के मैदानी अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। ताहम मशरकी शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई।
नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे खेल की खबरों का। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद, मैं हूं समी इकबाल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए प्लेयर्स ड्राफ्ट कल लाहौर के हुजूरी बाग में होगा। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन समेत 44 बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करा ली। ओवरसीज प्लैटिनम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउदी, वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर और जनूबी अफ्रीका के रॉसी वेंडर डूसन भी शामिल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का अचानक दौरा करके अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी ने मरकजी इमारत में जारी काम का मुआयना करते हुए फिनिशिंग वर्क हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार है। जदीद सहूलतों से आरास्ता गद्दाफी स्टेडियम रवां माह मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जनूबी अफ्रीका का दौरा करने वाली कौमी टेस्ट टीम में 7 तब्दीलियां की गई हैं। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नौमान अली और सलमान अली आगा स्क्वाड में बरकरार हैं। अबरार अहमद, इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी हुई है, जबकि आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को आराम दिया गया है। खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, काशिफ अली और रुहेल नज़ीर भी सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज मुल्तान में खेली जाएगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच 17 जनवरी से शुरू होगा। और खबर यह भी है कि न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ अफ्रीकी सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कीवी टीम की क़यादत मिचेल सैंटनर करेंगे। स्क्वाड में केन विलियमसन और डैरल मिचेल को भी शामिल किया गया है। फास्ट बॉलर बेन सीयर्स और विल ओरोके के अलावा ऑलराउंडर नेथन स्मिथ भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। दीगर खिलाड़ियों में माइकल ब्रिसवेल, मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवे, लोकी फर्गूसन, मैट हॉनरी, टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स भी शामिल हैं। रचिन रविंद्रा और विल यंग भी न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा होंगे। सैफ अफ्रीकी सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम 8 फरवरी को पाकिस्तान, 10 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के मध्य मुकाबिल होगी। सीरीज का फाइनल 14 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 के पहले मैच में पीटीवी ने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड को 4 विकेटों से हरा दिया। कराची में खेले गए मैच की पहली इनिंग्स में खसारे के बावजूद पीटीवी ने कामयाबी समेटी। पहली इनिंग्स में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने 406 रन जबकि पीटीवी ने 333 रन स्कोर किए। दूसरी इनिंग्स में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड की टीम 261 रन बनाकर आउट हुई और पीटीवी को 335 रन का हदफ मिला। पीटीवी ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। दूसरी इनिंग्स में तैमूर खान ने सेंचुरी मुकम्मल की। कप्तान अमाद बट ने 94 रन स्कोर किए। जिला हुंजा के तारीखी गांव अलतित में कराकुरम विंटर लीग सीजन 7 के मुकाबले जारी हैं। इवेंट के दौरान आइस हॉकी समेत मुख्तलिफ सरमाई खेलों के दिलचस्प मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। आइस हॉकी के पहले मैच में अलाइड बैंक ने हबीब बैंक को एक तरफा मुकाबले के बाद 8 गोल से हरा दिया। हबीब बैंक की टीम गोल करने में नाकाम रही, जबकि शदीद सर्दी के बावजूद शायकीन की बड़ी तादाद मुकाबले से खूब लुत्फानंदोज हुई। इवेंट में मुल्क भर से मर्दों की 7 और खवातीन की 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
और खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया समी। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।